Hey friends, in this video we are going to begin with the life cycle of pinus, in which we will start with the male cone of pinus. So first of all, we know that the general information about pinus plant is that it's heterosporous. Now what's the meaning of heterosporous is that the pinus plants, they produce two different kinds of spores, which is known as the microspores and the megaspores. The microspores are produced in microsporangia, which are born on the male cone. On the other hand, the megaspores are produced in the megasporangia. Now this megasporangium is also known as ovule, and these megasporangiums, they are produced on female cone. So this chart is very important in order to remind the reproductive cycle or the process of formation of microspores as well as megaspores. So male cone consists of microsporophylls around which are arranged spirally around them. These microsporophylls consist of microsporangia within them, and these microsporangia produces microspores. Similarly, in case of female cones of pinus, they consist of megasporophylls. Megasporophylls and microsporophylls in case of pinus are the scaly structures. So these scaly structures produces microspores as well as microsporangia and megasporangium ovule, which further give rise to the microspore and the megaspore, which represents the male and female gametophyte. So the pinus plants are heterosporous because they produce two different kinds of spores, that is the microspores and the megaspores. The other information is that the plants are monoecious. Now what's the meaning of monoecious is that कि जो pinus plant है उसके पास दोनों ही sex organs present है, which means that they have both male and female cone present on the same plant. तो male cone as well as female cone is present on the plant of pinus. However, the male cone is present on the lower branches while the female cones are present on the upper branches. तो जो male cones है वो नीचे वाली branches पे होते हैं, female cones ऊपर वाली branches पे होते हैं tree की. So in order to avoid self pollination, so this condition is to avoid self pollination, and also the thing is कि male cone जो है वो पहले mature हो जाते हैं as compared to female cones, which indicates that मेल कोन जो है वो जल्दी जब मैच्योर हो जाते हैं, सो दे अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दिस कंडीशन इन विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्री. So there is a condition of protandry which we can observe in pinus plant. The plants are monoecious and heterosporous. So these are the three basic informations which we need to know before studying the male and female reproductive organs formation in pinus. So the plants of pinus are heterosporous, they are monoecious, and they show protandry, right? Now the next thing is about the male cone of pinus. तो जो मेल कोन है पाइनस का उसको मेल स्ट्रॉबिलाई भी बोल सकते हैं, स्टैमिनेट कोन भी बोल सकते हैं, या स्टैमिनेट स्ट्रॉबिलाई भी कहा जा सकता है. So the male cone of pinus are also called male strobili, staminate cone or staminate strobili. Here in this diagram we can observe the structure of male cone. तो जो मेल कोन है वो सबसे पहले हमें पता है कि मेल कोन जो है फीमेल कोन से पहले बन जाते हैं, लोअर ब्रांचेस पे बनते हैं, प्रोटेंड्री कंडीशन शो करते हैं. लेकिन यहाँ पे ये किस ब्रांच पे उगते हैं? जो पाइनस प्लांट है वो दो तरह की ब्रांचेस और दो तरह के लीव्स शो करता है, which is the long shoot and dwarf shoot. These are the two different types of branches. There are two different types of leaves, which are first of all scale leaves, and the second is the needles, also known as foliage leaves. Now if we consider in this diagram, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो मेल कोन है दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर. दिस इज़ नॉट अ वन सिंगल मेल कोन. ये एक सिंगल मेल कोन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मेल कोन हैं और ये क्लस्टर में प्रेजेंट हैं. अबाउट 15 to 14 नंबर दे कैन बी प्रेजेंट. So the male cones, they arises earlier than female cone, and they usually arise in cluster about 15 to 40 in number, which is like over here we can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे 9 जो हैं वो male cones एक दूसरे के साथ इकट्ठे दिखा रखे हैं क्लस्टर में, and they arises in the axils of scale leaves. तो ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं scale leaves है, इन scale leaves की axils पे. Now what are the axils of scale leaves? Suppose this is a leaf, this is a leaf,
राइट. दिस इज द पेटियोल. सपोज वी कंसिडर दिस एज अ स्केल लीफ. तो ये स्केल लीफ है, ये पेटियोल है, ये शूट है. इसके बीच का जो ये स्पेस है, यहाँ पे जो है, यहाँ से अराइज करते हैं मेल कोन. सो द मेल कोन अराइजेज इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स जस्ट बिहाइंड द एपिकल बड. तो एपिकल बड के थोड़े से पीछे, सपोज दिस इज द शूट, दिस इज द एपिकल बड. सो द मेल कोन अराइजेज जस्ट बिहाइंड द एपिकल बड ऑफ लॉन्ग शूट. This is about the male cone. The male cones, they are present in cluster and they arises in the axils of scale leaves just behind the apical bud of long shoot. तो ये long shoot के apical bud से थोड़े से पीछे होते हैं एंड दे डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग शूट्स. हमें पता है कि जो लॉन्ग शूट्स और ड्वार्फ शूट्स होती हैं, इनकी दो अलग अलग टाइप्स हैं. जो लॉन्ग शूट है इनके पास एपिकल बड होती है, जो ड्वार्फ शूट है इनके पास एपिकल बड नहीं होती. ड्वार्फ शूट्स के पास नीडल्स होती हैं या फॉलिएज लीव्स होती हैं, जो कि लॉन्ग शूट्स के पास नहीं होती. सो जो ड्वार्फ शूट है, ड्वार्फ शूट जो है, ड्वार्फ शूट की जगह ही ये जो है मेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं. रिमेंबर, ड्वार्फ शूट्स की जगह ही ये मेल कोन प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स वाई वी से दैट ईच मेल कोन अराइजेज ऑन द ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ इन द प्लेस ऑफ ड्वार्फ शूट. In the place of dwarf shoot, and that's why these male cones are considered morphologically equivalent to dwarf shoots. So the male cones are considered morphologically equivalent to dwarf shoots, and this is about the whole information on the clusters of these male cone. तो अगर इस मेल कोन की, अगर हम एक सिंगल मेल कोन को यहाँ से निकाल के अगर हम देखते हैं, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेल कोन विच इज़ हैविंग स्केल लीव्स एट इट्स बेस. तो ये स्केल लीव्स प्रेजेंट है. मेल कोन का एक सिंगल स्ट्रक्चर है. और मेल कोन क्या कंसिस्ट करता है? मेल कोन्स के पास बहुत सारे स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस चार्ट कि जो मेल कोन है उसके पास स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे और इन्हीं स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा और यही माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करते हैं माइक्रोस्पोर्स को. राइट. सो दिस इज हाउ इट बिगिंस. सो यहाँ पे वी सी दिस इज द लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट, दीज आर दी कोन्स. इस कोन में से एक कोन को लेके देखेंगे तो इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ अबाउट द मेल कोन. अगर हम मेल कोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ईच मेल कोन इज़ ए स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर. तो बहुत ही छोटा एक ओवल स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है. तो जो मेल कोन है सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा है. छोटा सा एक ओवल स्ट्रक्चर है विच इज़ पेल ब्राउन इन कलर. द कलर ऑफ मेल कॉर्न इज़ पेल ब्राउन. एंड अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, अगर मैं इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट दूँ इस मेल कॉर्न को, सो दिस इज़ वी कैन सी दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कॉर्न. So this diagram represents the longitudinal section of this male cone. तो अगर longitudinally काट के देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो है middle portion जो है दिखेगा जिसको हम cone axis कहते हैं. So this cone axis जो है इसके आसपास जो प्रेजेंट है दीज आर नोन एज दी स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स. सो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. सो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है, ईच मेल कोन जो है उसके पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड ब्रॉड कोन एक्सिस. मेल कोन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड ब्रॉड कोन एक्सिस अराउंड विच द स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली. और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ईच माइक्रोस्पोरोफिल एज वी कैन सी दिस इज अ माइक्रोस्पोरोफिल, राइट. दिस होल स्ट्रक्चर इज अ माइक्रोस्पोरोफिल. नाउ दिस माइक्रोस्पोरोफिल कंसिस्ट ऑफ दिस स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर called as microsporangium, and this microsporangium bears these small structures which is called as the microspores. ठीक है. तो यहाँ पे जो है माइक्रोस्पोर्स इस तरह माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. और ये जो है स्पाइरली अरेंज्ड है कोन एक्सिस के आसपास एट राइट एंगल पे. तो दिस इज दी राइट एंगल. तो राइट एंगल पे जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट है ऑन द कोन एक्सिस ऑफ द मेल कोन. राइट.
नाउ वन थिंग इज़ कि जो नीचे के माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं ये स्टराइल होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है यहाँ पे वी कैन सी दिस इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल, बट दिस लोअर माइक्रोस्पोरोफिल्स दे आर स्टराइल बिकॉज दे डोंट कंसिस्ट ऑफ दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इनके पास जो है माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट नहीं है या माइक्रोस्पोरेंजिया इनके पास नहीं है इस तरह का, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पोलन सैक इनके पास नहीं है। सो दैट्स वाई दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स विच इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द मेल कोन आर स्टराइल, right? So this is about the longitudinal section of the male cone, which is just a very small pale brown structure about 2 to 4 centimeter in length, and it bears the scaly microsporophyll. Now the next thing that we need to discuss is about the microsporophyll of the male cone. तो हमने जो है मेल कोन देख लिया है, स्मॉल ब्राउन स्ट्रक्चर है। अब उसके पास जो माइक्रोस्पोरोफिल्स उसके आसपास प्रेजेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इक्विवेलेंट टू द स्टेमन ऑफ एंजियोस्पर्मस फ्लावर। अब स्टेमन के पास क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, जो कि एंजियोस्पर्मस फ्लावर के पास होता है। उसी तरह से जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो स्टेमन के इक्विवेलेंट है। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के पास दीज आर द 3 डिफरेंट डायग्राम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो पहला डायग्राम है, दिस रिप्रेजेंट्स द माइक्रोस्पोरोफिल इन द फ्रंट व्यू, this is the side view, and this is the microscopic form transverse section of the microsporophyll. तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है, स्केली माइक्रोस्पोरोफिल का ये फ्रंट व्यू है। इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट राइजेज एट राइट एंगल टू द कोन एक्सिस ऑफ मेल कोन। सेकेंडली इट्स अ वेरी स्मॉल ब्राउन स्केली एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। Each microsporophyll is a small, brown, scaly and triangular structure, और इसको 3 अलग अलग पोर्शंस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले ये स्टॉक, जो कि फिलामेंट के इक्विवेलेंट मानी जाती है। नेक्स्ट इज दिस मिडिल एक्सपेंडेड फोर्टाइल पोर्शन विच कंसिस्ट ऑफ 2 elongated sac like structure known as microsporangia, and this is the fertile part, and this microsporangia are present on the lower abaxial surface, मतलब कि नीचे वाली surface lower surface पे present होता है, and while its upper surface consists of a sterile portion. So this is the sterile portion. Here we can see this is the sterile apophysis portion. This is the middle expanded part which consists of 2 elongated sac like microsporangia on the lower surface. This is the side view, and this is the transverse section in which we can see कि जो pollen sac है, जो microsporangia है, microsporangia bears the microspores within them. So these are the microspores inside the microsporangia. So this is the structure of microsporophyll.